A very good afternoon to all my DHS second year students. I hope all of you are doing well. आज आप लोगों का लॉजिक एग्ज़ाम है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. आप लोग सारे अच्छे से पढ़े और अच्छे से एग्ज़ाम दें. ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ आवर रिविजन क्लास. ओके, और आज का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ इंडक्शन. नाउ दिस काइंड्स ऑफ इंडक्शन इज़ very important. Okay, you will surely get objectives and descriptives both from these kinds of induction, that is for sure. Okay, so जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस ध्यान से नहीं सुने, आज फिर से आप लोगों को मौका मिल रहा है. सो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर्स सुने, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. काइंड्स ऑफ इंडक्शन. पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स. इंडक्शन इज ऑफ टू काइंड्स. हाउ मेनी काइंड्स? टू काइंड्स. इंडक्शन प्रॉपर, इंडक्शन improperly so called. इंडक्शन प्रॉपर एंड इंडक्शन improperly so called. Induction proper again is subdivided into three kinds: scientific, unscientific, analogy. Induction improperly so called is again subdivided into three kinds, that is perfect induction, colligation of fact, parity of reason. ठीक है, इतना अच्छी तरह से समझ लीजिए. ओके, now what is induction? Induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances. Induction का मतलब है इंडक्शन एस्टैब्लिश करता है या फिर बनाता है जनरल रियल प्रोपोजिशन. ओके, वो प्रोपोजिशन बनाता है जो जनरली सच हो. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंसेस और पार्टिकुलर फैक्ट्स. पार्टिकुलर फैक्ट्स ऑब्जर्व करके एक जनरल कंक्लूजन तक जाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑल काउज आर 4-footed एनिमल. नाउ ये जो बात है, ये जो प्रोपोजिशन है, ऑल काउज आर 4-footed एनिमल, ये हम लोगों को पता चला है थ्रू इंडक्शन. कैसे? बाय ऑब्जर्विंग पार्टिकुलर केसेस. फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोगों ने एक काउ देखा जो 4-footed था. नेक्स्ट डे और एक काउ देखा जो 4-footed था. थर्ड डे और एक काउ देखा जो 4-footed था. एंड फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल काउज आर 4-footed एनिमल. सो जितने भी प्रैक्टिकल नॉलेज आज हमारे पास है अबाउट द एनवायरनमेंट, ऑल द नॉलेज वी डिराइव फ्रॉम इंडक्शन. सो व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज पासिंग फ्रॉम particular to general. Okay, by observing particular cases to a general proposition is known as induction. And inductive leap is the essence of induction. So what is inductive leap? Inductive leap means passing from something known to something unknown, or passing from particular to general. ठीक है. Now induction is of two kinds. How many kinds? Two kinds. That is induction proper and induction improperly so called. Now ये induction proper और induction improperly so called में difference क्या है? सिर्फ एक ही difference है. The difference is that induction proper में inductive leap है, okay? और induction improperly so called में inductive leap नहीं है. मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है inductive leap क्या है. Okay? So the difference between induction proper and induction improperly so called is that in induction proper there is inductive leap, and in induction improperly so called there is no inductive leap. Clear? Now induction proper is subdivided again into three kinds. Induction proper जो है वो फिर से subdivide हुआ है into three kinds. What are the kinds? Scientific induction, unscientific induction, and analogy. Now what is scientific induction? Scientific induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances in reliance to two laws. In reliance to two laws. What are the laws? Law of uniformity of nature and law of causation. Okay, for example, all men are mortal.
जो साइंटिफिक इंडक्शन है, साइंटिफिक इंडक्शन भी एस्टेब्लिशमेंट है जनरल रियल प्रोपोजिशन का बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंसेस, बट ये साइंटिफिक इंडक्शन दो लॉज के ऊपर बेस करता है। कौन सा है वो दो लॉज? एक है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर और एक है लॉ ऑफ कॉजेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर? लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर मीन्स नेचर इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स नेचर सेम रहता है हमेशा। nature will behave in the same way under similar circumstances. Okay, like for example, if the sky is covered with dark clouds, then it will rain. Hamesha, in past also, when the sky was covered with dark clouds, it rained. In the present also, if the sky is covered with dark cloud, it will rain. And in future also, अगर the sky is covered with dark cloud, then it will rain. That means nature is uniform. Okay, that means nature will behave in the same way under similar circumstances. Okay. Now let us go to unscientific induction. Unscientific induction is also the establishment of general real proposition based on observation of particular instances, but it is based on uncontradicted experience of facts. ठीक है, साइंटिफिक इंडक्शन जैसे बेस करता है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन में, बट अनसाइंटिफिक इंडक्शन किसी लॉ के ऊपर बेस नहीं करता है, पर बेस करता है एक्सपीरियंस के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्रोज आर ब्लैक, कैसे पता चला? एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके। ऑल काउज आर 4-footed एनिमल, कैसे पता चला? सेम, थ्रू आवर एक्सपीरियंस। वी हैव ऑब्जर्व मैनी केसेस जिसमें काउज आर 4-footed, सो फ्रॉम दिस वी एक्सपीरियंस दैट ऑल काउज आर 4-footed एनिमल। ओके, सो अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन uncontradicted experience of facts. For example, all cows are 4-footed animal. Clear? Now what is analogy? Analogy means resemblance between two things. दो चीज़ के बीच में resemblance और similarity को analogy कहा जाता है. What is the ground of analogy? ध्यान से सुनना, very important question. What is the ground of analogy? Imperfect similarities are the ground of analogy. What is the ground of analogy? Imperfect similarities are the ground of analogy. Now analogy का ज़रूरत क्या है? Analogy works as a substitute. Okay, suppose क्लास में आप लोग पेन नहीं लाए लिखने के लिए, बट आपके पास पेंसिल है, सो अब पेन और पेंसिल का क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है, सो पेन के जगह हम लोग पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स, मैच द क्वालिटीज मैचेस बिटवीन टू थिंग्स, सो दैट इफ देर इज एब्सेंस ऑफ वन थिंग वी कैन यूज़ द अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ एंड मार्स, जब अर्थ में सारे जगह ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है हम लोग मार्स में जाके रहे, क्योंकि अर्थ और मार्स में जो क्वालिटीज़ है वो सिमिलर है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। ठीक है, क्लियर? Induction properties of three kind, that is scientific induction, unscientific induction and analogy. Now induction improperly so called is also of three kinds, that is perfect induction, colligation of fact and parity of reasoning. Perfect induction, what is perfect induction? फिर से एक बार, induction improperly so called में inductively नहीं होता है। Perfect induction is the establishment of general real proposition based on examination of particular facts. Okay, perfect induction जो है ये भी establishment है general real proposition का, but it is based on examination of facts. ठीक है, for example, अगर मैं एक दिन कॉलेज में a bag full of orange लेके आई और मैंने कहा बच्चों बताओ whether all the oranges in this bag are sweet or not, तो फिर आप लोगों को देख के पता चल जाएगा क्या बैग का ऑरेंज स्वीट है कि नहीं? नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एग्जामिन, एंड हाउ यू विल एग्जामिन? यू विल टेस्ट one piece from each orange, and then you will conclude whether all the oranges of this bag are sweet or not.
ओके। सो परफेक्ट इंडक्शन वो इंडक्शन है जो एस्टैब्लिश तो करता है जनरल रियल प्रोपोजिशन, बट इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। दूसरा है कॉलिगेशन ऑफ फैक्ट। कॉलिगेशन ऑफ फैक्ट का मतलब है यूनियन ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, उसके क्वालिटीज़ और उसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ डिफाइन मी अ टेबल, व्हाट इज़ अ टेबल, तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे? यू विल डिफाइन द फैक्ट्स ऑफ द टेबल, दैट अ टेबल मे बी ओवल, round, square, rectangle. It has 4 legs. We use table for writing, eating our food, keeping things. Table is solid. It may be made of plastic, wood or any other solid materials. It occupies space. It may be of many colors. So ये सब आप लोग मुझे explain करोगे about a table. So ये सब क्या है? ये सब है the facts about a table, collection or union of facts. सो यूनियन ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कोई भी चीज़ फॉर्म होता है विद दिस फैक्ट्स, यूनियन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज पैरिटी ऑफ रीजनिंग। पैरिटी ऑफ रीजनिंग इस तरह का रीजनिंग ज़्यादातर हम लोग मैथ्स, ज्योमेट्री ये सब में देखते हैं। द सेमनेस ऑफ रीजनिंग मतलब एक बार जो सीख लिया उसी को लेके हम लोग फ्यूचर में कंटिन्यू करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है व्हाट इज़ अ ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल सबको पता है यहाँ पे। सो इन फ्यूचर में अगर आप लोगों को कोई ज्योमेट्री सॉल्व करना हो विद द ट्राइंगल, तो फिर आप लोग फिर से ट्राइंगल सीखोगे नहीं, फिर से समझोगे कि ट्राइंगल क्या है नहीं, क्योंकि ट्राइंगल हम लोगों को ऑलरेडी पता है। सो उसी को लेके हम लोग ज्योमेट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स इट इज़ सेम, द ट्राइंगल विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज इन फ्यूचर, ओके। लाइक ट्रायंगल इज़ अ 3-sided पॉलीगन, वो हम लोगों को पहले भी पता था, आज भी पता है, इट इज़ सेम एंड इन फ्यूचर ऑल्सो द ट्रायंगल विल रिमेन सेम। सो दैट इज़ कॉल्ड सेमनेस ऑफ रीजनिंग। एक चीज़ के बारे में जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है उसी सेम चीज़ को लेके हम लोग फ्यूचर थिंग्स सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हम लोग फिर से उस चीज़ को जानने के लिए नहीं जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हो, ABCD सीखने फिर से जाओगे नहीं। ABCD आप लोगों को ऑलरेडी पता है और ये भी पता है कि इन फ्यूचर भी आज भी ABCD सेम है और फ्यूचर में भी ABCD सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड सेमनेस ऑफ रीजनिंग। आई होप सबको समझ में आया होगा काइंड्स ऑफ इंडक्शन। टुमारो आई विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल्स, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।